गुड आफ्टरनून जी। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੇਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਫॉर ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਪੈਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ VBT ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ VBT ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਸ਼ੇਪ ਕਵਰ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ sp3d2 ਜਾਂ ਫਿਰ D2sp3। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ। ਅਗਰ dsp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। VBT ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਨਪੇਡ ਵਾਲੇ ਪੇਅਰਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। VBT ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ VBT ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਔਰ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ D ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਰ D ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਊਟਰ D ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਆਊਟਰ D ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇਨਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਐਂਡ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਔਕਟਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੇਪ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, sp3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ। ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸ sp3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਨਿਕਲ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ 4 ਟਾਈਮਸ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਕਲ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਕਲ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਆਇਰਨ ਕੋਬਾਲਟ ਨਿਕਲ ਤਾਂ 28ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆਰਗਨ 18, ਆਰਗਨ 18 3d8 4s2, आर्गन 18 3d8, सेकेंड पेन नहीं चल रहा, आर्गन 18 3d8 4s2, ये अपन ने निकल की कॉन्फिगरेशन बन गई, है ना। पर हुण इत्थे इहदी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। देखो निकल दी हुंदी है X, कार्बोनाइल 0 हुंदा है, न्यूट्रल हुंदा है 0, बराबर सारे ते भी कोई चार्ज नहीं है 0, यानी कि X हैगा 0। तो ਇਹਦਾ मतलब यही है ਇਹਦੀ फाइनल ਨਿਕਲ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3d8 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, D ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਆਰਬਿਟਲ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, 1 2, ਇੱਥੇ 4s2 ਹੈ ਜੀ, ਆ 3d8 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4p ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, 4p 0। ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ D ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਨੇ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਇਕੱਠੇ, ਖਾਲੀ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਖਾਲੀ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਆ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, 3D ਬਣ ਜਾਂਦਾ 10। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4s ਬਣ ਗਿਆ 0,
ठीक है जी। नाल ही 4p बन गया 0, 3 ऑर्बिटल खाली। हुण चैक करो, निकल ने 4 बॉन्ड्स बनाने ने, टैट्राहेड्रल शेप है sp3, तो आ सारे मिलके की बन जाएंगे sp3। सही है। हुण अगर मैं पूरा कंपाउंड की एग्जाम्पल लवां, निकल कार्बोनाइल 4 टाइम्स की बन जाएगा 3d10, तो 3d10 ही है, कोई फर्क नहीं पिया इनू। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तो बाद आ sp3 एक और ये 3 4 इकट्ठे हो गए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ पेयर रखते। ठीक है जी। ये बन गया मेरे को फाइनली निकल कार्बोनाइल 4। टैट्राहेड्रल है, अगर इसकी शेप भी बनानी हो तो किवें बनावांगे, निकल नूं सेंटर च रख के 2 कार्बोनाइल एक प्लेन के अंदर, एक कार्बोनाइल प्लेन तो आउटसाइड, एक कार्बोनाइल प्लेन की बैक साइड। एंगल कितना है 109.5 डिग्री। नोट करो फटाफट। होर की पॉइंट्स ने, देखो ये अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन नहीं है, चेक करो कितने भी अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन नहीं है, तो यह मेरे को बन गया डाया मैग्नेटिक। जीरो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। नोट करो जल्दी जल्दी। नोट कर लिया जी। एक और एग्जाम्पल कर दिया। चलो ये तुसी ट्राई करो एक बारी, मैं ये बारे दस देना थोड़ा बहुता। इस पेयरिंग कराने की जरूरत ही नहीं पाएगी। Zn NH3 4 2 पॉजिटिव। ठीक है। जिंक की ऑक्सीडेशन, जिंक की कॉन्फिगरेशन, जिंक 3वें नंबर पर होंगे, तो क्या कॉन्फिगरेशन आएगी, आर्गन 18 3d10 4s2 4p0। फटाफट देखो। ठीक है, पूरा बना के मैनू एंड च कुछ चीज़ें चाहिए ने। पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ठीक है, जे पैरा है तो कोई अनपेड इलैक्ट्रॉन नहीं होएगा, जे सॉरी जे पैरा तो अनपेड इलैक्ट्रॉन होएगा, जे डाया तो नहीं होएगा। जेड़ा भी केस है, नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन्स कितने ने। हाइब्रिडाइजेशन की है, वैसे आप ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे हैं तो पता ही होएगा sp3। फिर भी देखो क्या sp3 बन रही है। 3 क्वेश्चन के आंसर ने, फटाफट ट्राई करो। बना के देखो फटाफट। देखिए जी की है ये अंदर। देखो पहला तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट लभदे हैं। जिंक को मान लिया x, अमोनीया तो न्यूट्रल ही होंगे 0 बराबर, होर कुछ नहीं है तो सारे का चार्ज है 2, तो x आ गया +2।
तो इसका मतलब मैं जिंक के उत्ते 2 इलैक्ट्रॉन लूज करने ने, है ना। 2 इलैक्ट्रॉन किधरों लूज करांगे, सब तो बड़ी शैल चो। सब तो बड़ा शैल कौन है, चौथा। तो आ 2 इलैक्ट्रॉन चले गए, की बन गया आर्गन 18, 3D बन गया 10, 4s आ गया 0, 4p आ गया 0। 3D 10 का मतलब डायमैग्नेटिक है, ठीक है जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हरगोबिंद शाबाश, बिल्कुल ठीक है। S0 P0, 4 बॉन्ड्स बनाने ने, 4 बॉन्ड्स बनाने ने तो इस ते P मिल गए, ठीक है जी। ये तो बन गया sp3, 4 खाली ऑर्बिटल ने, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। इतने तो सारे पेयर ही आएंगे, बाकी सारे पेयर्ड ने, तो बन गया डाया। जे डाया मैग्नेटिक है तो अनपेड इलैक्ट्रॉन कितने आएंगे, 0। गल समझ आ रही है ना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के खाली ऑर्बिटल चाहिए ने, आ पे ने खाली ऑर्बिटल, इतने तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गई। बाकी सारे तो पता लगेगा भी पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, हो जाएगा जी, ठीक है। टेट्रा देखना, डाया का मतलब ही वो है जिदे कोल कोई भी इलैक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना हो, सारे पेयर च हो। देख आ भी पेयर है, पेयर है, पेयर है, पेयर है, सारा कुछ ही पेयर च है। जेडे इतने इलैक्ट्रॉन भरनगे वो भी पेयर च ने, तो अनपेयर वाले किन्ने हुए, कोई भी नहीं, तो 0 आ गया, ठीक है ना। इस तरह नाल क्वेश्चन होएगा ये। तो टैट्राहेड्रल का तो बहुत ईजी सीगा, बहुत आराम नाल बन जाता है। हुण टैट्राहेड्रल तो बाद देखते हैं आपां तीसरी शेप सी, या थर्ड लिख लो, जो भी नंबरिंग चल रही सी, मैंने याद नहीं लास्ट नंबरिंग केड़ी सी। थर्ड है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर के अंदर शेप हाइब्रिडाइजेशन रहती है DsP2, यानी कि अंदर वाला D इनवॉल्व होंगे तो एक S और 2 P ऑर्बिटल इनवॉल्व होंगे, ठीक है। हुण आप एक एग्जाम्पल चकते हैं, ये अंदर सब तो पहले देखो, सब तो पहला ये एग्जाम्पल लिखो, निकल 4 साइनाइड है, 2 नेगेटिव, निकल 4 साइनाइड है, 2 नेगेटिव, ठीक है। सेम उस तरीके के नाल होएगा यार, सारा कुछ बिल्कुल सेम होएगा। निकल की कॉन्फिगरेशन 28वें नंबर पर होंगे निकल, तो क्या आ गई, ये आ गई आर्गन 18, उस तो बाद आ गया ये 3D8, इस तो बाद आ गया ये 4s2, इस तो बाद 4p, सारे का सारा खाली पे, सही है जी। चलो 3D8 के अंदर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस दे अंदर 2 इलैक्ट्रॉन पे ने, पी के अंदर कोई इलैक्ट्रॉन नहीं पिया। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा, वैसे मैं लास्ट क्लास दस्या सी भी जिथे भी साइनाइड है ना उत्थे पेयरिंग होनी होंगी है, तो दसन की जरूरत नहीं पेगी। इतने पेयरिंग जिन्नी भी हो सकती है, पहला देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, साइनाइड के होंगे -1, 4 ते आ गया -4, इक्वल्स टू सारे का चार्ज है -2, तो इतों एक्स आ गया +2, है ना। तो यह मतलब अगर मैं निकल +2 चैक कर दें तो कितना आएगा जी, 2 इलैक्ट्रॉन उड़ाते, 4s दे विचों चले गए, तो यह बन गया आर्गन 18, 3D ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पिया, 3D8, 4s0, 4p0, पर साइनाइड की प्रेजेंस से पेयरिंग हो गई आती है। देखो 2 इलैक्ट्रॉन तो आ खत्म ही हो जाएंगे, है ना, ये खत्म हो गए। हुण आ दोनों कल्ले कल्ले ने इन्हों की पेयरिंग हो गई, तो इत्थे एक खाली ऑर्बिटल बच जाएगा, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा इस बार 3D8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। जे साइनाइड तो बिना होर हुंदा तो शायद पेयरिंग नहीं होंगी, पर मैं तुहानूं दस्सिया सी भी साइनाइड च पेयरिंग करनी ही करनी है, तो पेयरिंग करती आपां ने। हुण खाली ऑर्बिटल काउंट करने शुरू करो, एक आ पिया खाली ऑर्बिटल, एक आ पिया, 4 चाहिए ने टोटल, 2 आ पे ने, तो ये चारा तो मिलके DsP2, आ देखो आ डी च है, आ एस है, 2 P ने, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। नोट करो पहला इन्हें फटाफट, उदा देख लो सारे दे सारे पेयर्ड ने, तो डायमैग्नेटिक। जे कई बच्चे ने इन्हों देख के आंसर कर देंगे ने, अंदर तो देखो आ 2 अनपेयर्ड पे ने, तो पैरामैग्नेटिक आंसर लिख देंगे ने, वो गलत है। कली कली चीज नोट करनी है भी पेयरिंग करनी है, 2 इलैक्ट्रॉन इतों उड़ाने ने, सारा कुछ करने तो बाद इन दी एंड क्या कोई इलैक्ट्रॉन बचिया पेयर या नहीं बचिया, सारे दे सारे पेयर्ड ने, ठीक है। तो यह मतलब ये आ गया डाया मैग्नेटिक आ गया जी,
डाया हाइब्रिडाइजेशन की आ गई यदि DsP2। फटाफट नोट कर लो। लिख लिया? ठीक है, चलो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗਾ CuNH3 4 ਟਾਈਮਸ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। 2-3 ਸਟਾਰ ਪਾ ਲਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, CuNH3 4 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ 29th, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ? ਆਰਗਨ 18, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3D10, ਫਿਰ 4S1, ਫਿਰ 4P0। ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਡੀ 'ਚ 10 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, S 'ਚ 1 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एस दे अंदर 1 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, पी सारे का सारा खाली पे है। हुण इहदी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। कॉपर नूं मन के चलते हैं एक्स, अमोनीया न्यूट्रल हुंदा है, यानी कि आ गया 0 बराबर सारे का चार्ज है +2, तो एक्स आ गया +2, यानी कि कॉपर के उत्ते +2 चार्ज है। तो अगर मैं कॉपर +2 की कॉन्फिगरेशन लिखूंगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने ने। ਹੁਣ 2 इलेक्ट्रॉन इस दे विचों 1 निकल जाएगा, 3D10 चो 1 निकल जाएगा। क्या बचेगी कॉन्फिगरेशन? आर्गन 18 3D10 की जगह पे आ जाएगा 3D9, इस तो बाद आ जाएगा 4S0 4P0। सही है जी। 3D9 आएगा, किमें आएगा देखो, 9 इलेक्ट्रॉन भरने ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। एस खाली पे है, एस खाली भरता, पी खाली पे है, पी खाली भरता। सही है। हुण ना होना की चाहिए, 4 भरने ने तो 4, देखो 4 भरने ने आपां ने तो 4 किवें आउणगे? आ 4 ऑर्बिटल होने चाहिए रूल के हिसाब नाल, तो यही चलता है ना। पर इच एक्सैप्शनल केस हुंदा है। इच की हुंदा है, आ वाला जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है ये इत्थों एक्साइट होके इधर चला जाता है इस जगह पर। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ कि मैं दसिया ना भी VBT ने कोई आंसर नहीं किया भी एवं क्यों होंदा। VBT ने सिर्फ दसिया भी हाँ जी एवं होंदा। CFT दसेगी ये सारा कुछ भी ये क्यों होया सीगा। ये इलैक्ट्रॉन इधरों एक्साइट होकर इत्थे चला जाता है, तो इत्थे इलैक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट च चला जाता है। ठीक है, तो इत्थे की बन जाएगा, इसकी कॉन्फिगरेशन किहो जी बन जाती है। देखो इत्थे बन जाता है आर्गन 18, इधर रह जाता है 3D8। ये ताही करके स्कूल च बहुत पूछा जाता है, क्योंकि एक्सैप्शनल केस है। ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये आ उड़ गया, इत्थे आएगा, एक्सैप्शनल है, इधर आ गया। ये वाला है इत्थे 3D8 हो गया, 8 ही सीगा, 4S0 है हले भी, 4P के अंदर 1 इलैक्ट्रॉन चला गया जिहड़ा इधरों जंप करके गया, तो आप 1 इलैक्ट्रॉन। हुण आ वाले आ देखो ये चारों मिल जाते हैं, तो की बन गया, ये 1 D आ गया, 1 S आ गया, 2 P आ गए, है ना। तो इत्थे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। हुण जे एवें ना एक्साइट हुंदा, जे इलैक्ट्रॉन इधर ही रहिंदा, तो फिर SP3 हाइब्रिडाइजेशन बन जानी सीगी।
यानी कि टेट्राहेड्रल शेप। पर एक्सैप्शनल केस है, ये अंदर एक इलैक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है और आ वाली कॉन्फिगरेशन रह जाती है DsP2, यानी कि किहड़ी शेप बन गई DsP2 स्क्वायर प्लेनर। हुणी जो असीं VBT के ड्रॉबैक्स लिखांगे तो आप अंदर ये भी चीज़ लिखांगे भी देखो VBT ने आ चीज़ दस तो दी भी एवें हुई है, पर की कारण है ਇਹਦਾ इलैक्ट्रॉन इत्थे क्यों नहीं रहा, हायर क्यों चला गया, वो VBT च किते मैंशनड नहीं है ना। इलैक्ट्रॉन अपने आप अंदर पेयर क्यों हो जाते हैं, वो VBT च किते भी मैंशनड नहीं है। तो इस तरह नाल स्क्वायर प्लेनर शेप बन जाती है। ठीक है, इन्नी गल समझ आ रही है। तो ये अंदर हुण अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन सिंगल हैगा तो हैगा ना हाले भी अनपेयर्ड, तो यह अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ये अंदर हैगा 1, यानी कि ये बन गया जी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यदि हाइब्रिडाइजेशन की आ गई, यदि हाइब्रिडाइजेशन आ गई DsP2 और एक केड़ी शेप है जी DsP2 के हिसाब नाल, ये बन गई मेरे को स्क्वायर प्लेनर। इन्ना पार्ट समझ आ रहा है जी। ठीक है, आ देखो ये इस तरह नाल है, ये बड़ा एक्सैप्शनल केस है, यह जो एक केस और होएगा वो भी मैं बाद लिखाऊंगा, नोट कर लो फटाफट ये सारा कुछ। एग्जाम्पल याद रखनी है, कॉपर अमोनिया 4 बार ऊपर 2 पॉजिटिव है ना, टेट्रामीन कॉपर। लिखो जल्दी। कल है जी। ठीक है, हाँ लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ VBT। थोड़े पॉइंट्स लिखने वाले ने ये फटाफट लिखियो। ड्रॉबैक्स ऑफ VBT। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, इट कैन नॉट एक्सप्लेन it cannot explain why some compounds are inner orbital complexes and some are outer orbital complexes। ये तो मैं पहले ही दस रहा सीगा भी इस थ्योरी ने सिर्फ दसिया भी ये अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज होंदा है, ये अंदर बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज होंदा है, बट उसका कारण की है वो नहीं कितने भी मैंशनड हैगा। तो पहला पॉइंट, पहला ड्रॉबैक यही रहेगा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्सेस आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड सम कॉम्प्लेक्सेस आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा पॉइंट, it could not give satisfactory explanation for the color of complex। It could not give satisfactory explanation for the color of complex। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਾਫੀ ਕਲਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है, बड़े तरह के कलर होंगे ने कोआर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो इन्हों का कोई कलर क्यों आया। हुण देखो
साफ जी गल है कलर कदों भी किसी चीज़ का तां दा हुंदा जे इलैक्ट्रॉन वो अंदर एक्साइटेड हो रहे हैं वापस जा रहे हैं रेडिएशन एमिट कर रहे हैं तो ये चीज़ां करके कलर आंदा हुंदा है ना। बट वीबीटी ने कुछ खास कलर के बारे दस्या नहीं भी कलर क्यों आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जी असी अगली थ्योरी पढ़ांगे ना CFT के अंदर बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस कलर का होंदा है और उसका रीजन की है। बट वीबीटी ने यह कुछ नहीं दसिया, ठीक है ना। तो इट डज नॉट गिव सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट डज नॉट गिव exact explanation. It does not give exact explanation for stability of the compound. It does not give exact explanation for stability of the compound. Next point लिखो, it involves a number of assumptions. ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ assumption तो वैसे डिस्कस नहीं ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, नहीं जरूरत हैगी डिस्कस ਕਰਨ ਦੀ। it involves number of assumptions. next लिखो, it could not explain the excitation. It could not explain the excitation of electron from 3D orbital to 4p orbital for some coordination compounds. जिवें मैं हुणी एग्जाम्पल करवाई है ना कॉपर और अमोनीया वाली, ਉਹਦੇ अंदर इलैक्ट्रॉन 3D तो 4p क्यों गया, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ why electron is excited from 3D orbital to 4p orbital for some coordination compound, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, for some cases the magnetic order या the magnetic behavior, for some cases the magnetic behavior predicted by VBT, for some cases the magnetic behavior predicted by VBT is incorrect. ठीक है। वो मैग्नेटिक बिहेवियर की है वो आप पहला पढ़ते हैं, हैडिंग लिख लो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हैडिंग लिख लो फटाफट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैग्नेटिक मोमेंट तुसी फिजिक्स के अंदर भी जरूर किते ना किते मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर पढ़िया होना, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज़ है, बेसिकली किसी के अंदर किसी का मैग्नेटिक बिहेवियर कहे जाए। हुण एक गल सिंपल जी है, कोई एटम है वो मैगनेट की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि जो इलैक्ट्रॉन है इलैक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, तो फिजिक्स कहता है कि जो भी कोई चार्ज स्पिन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तुसीं मैग्नेटिज्म चैप्टर च जरूर पढ़िया होना कि जो भी कोई चार्ज स्पिन करता है, रोटेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हुण इलैक्ट्रॉन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। पर दिक्कत की आती है, जिहड़ी पेयरिंग होंदी है, हुण मान लो एक पेयर है इलैक्ट्रॉन का इस तरह नाल, इहदा स्पिन डिफरेंट डायरैक्शन च है, यानी कि इहदा फील्ड डिफरेंट डायरैक्शन च है, दूजे वाले का स्पिन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो दूजे वाले का मैग्नेटिक फील्ड इहदे मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल उल्टा होएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वैक्टर क्वांटिटी है ना, वैक्टर प्रॉपर्टी है। तो जे दो वैक्टर एक दूजे तो उल्टा काम कर रहे हैं तो उन्होंने रिजल्टेंट कितना होएगा, 0, ठीक है ना। तो बेसिकली जिन्ने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने जिन्हां दे अंदर इलैक्ट्रॉन का पेयर है, सारे दे सारे इलैक्ट्रॉन ही
ਪੇਅਰਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਪੇਅਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ 0, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ 3D ਕਹਿ ਲਓ 10 ਹੈ, 3D 10 ਦੇ ਅੰਦਰ D ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫੀਲਡ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 0। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੋਲ ਉਸ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸੋ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਟ n into n+2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ n ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? n ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ठीक है। मान लो किसी के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा अंडर द रूट 1 ब्रैकेट 1+2, ठीक है। अगर किसी को दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक मोमेंट अंडर द रूट 2 × 2+2। इसी तरह नाल ही फॉर्मूला चलता रहेगा, ठीक है। तो थोनों रैंडमली कोई भी एक कंपाउंड देके उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है। हुण मान लो कंपाउंड डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक का मतलब सारे ही पेयर्ड ने, तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 0। और ये यूनिट्स की होंगे ने, ये यूनिट्स होंगे ने BM बोहर मैग्नेटॉन, ये तुसीं पक्का पढ़िया होना मैग्नेटिज्म के अंदर, ठीक है। BM बोहर मैग्नेटॉन होंगे, ठीक है। तो इस तरह नाल काम करता है अंडर द रूट n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। हो जाएगा इन्ना कुछ पार्ट। हुण आपां जिवें इहदे एक दो क्वेश्चनस करते हैं, क्वेश्चन लिखो फटाफट। हले मैं अपने वालों दस दूंगा भी किहदे अंदर पेयरिंग करवानी है, किहदे अंदर नहीं करवानी, ठीक है। लिखो मैनू एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एवं नहीं भी अंडर रूट 17 अंडर रूट 18 उन्होंने सॉल्व करो कितना है, क्योंकि पेपर के अंदर तुसी एग्जैक्ट आंसर लिख के आना है, रूट च नहीं लिख के आना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फॉलोइंग compounds, find magnetic moment of following compounds। पहला की है FeCN6 4-, पेयरिंग करवानी है, साइनाइड है, पेयरिंग करवानी है। फटाफट चेक करो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किन्ने ने, FeCN6 4-। फटाफट पहला तो ट्राई करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किन्ने बनते हैं, जल्दी। जीरो अनपेयर्ड, देखिए तो यदा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 0, है ना। चेक कर लेने की आंसर है। हुण यदि ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेने X - 6 - 4, ये आ गया +2, ठीक है। मैं Fe+2 सीधा ही लिख दिना। Fe+2 कितना होंगे जी, आर्गन 18 होंगे, उस तो बाद होंगे ये बनेगा 3d6 4s0, ठीक है। इस तरह नाल बनेगा। ये तो बाद 4p भी 0 पे, 4d भी सारे का सारा खाली पे, सही है जी। 3d6 हुण देखो साइनाइड के अंदर पेयरिंग करानी है तो पहला ही पेयरिंग करा लेना मैं, इस तरह नाल पेयरिंग हो चुकी होएगी, ठीक है। अब बन गया D2sp3, D2sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ये अंदर चेक कर लो, ये अंदर अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन कोई भी नहीं बचेगा, अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन 0, तो यदा मैग्नेटिक मूवमेंट भी आ गया 0। फटाफट चेक करो सारे ये गल समझ आई या नहीं आई, जल्दी देखो।
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਸਾਹਿਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀ ਹੰਡਜ਼ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ +1 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੰਡਜ਼ ਰੂਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 4-5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁਣੀ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟੌਪਿਕ। ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, चलो एक होर देखते हैं आप। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट है। सेकंड पार्ट Mn Br4 2-। ठीक है, ਇਹਦਾ मैग्नेटिक मोमेंट पता करो। कोई पेयरिंग नहीं करवानी ਇਹਦੇ अंदर, कुछ नहीं करवाना, सिंपली जिवें है उवें चलाना। मैंगनीज किनवें नंबर ते हुंदा है? मैंगनीज 25th एटॉमिक नंबर हुंदा है ਇਹਦਾ 25। मैं चलो ਇਹਦੀ कॉन्फिगरेशन भी लिखी दिना। मैंगनीज ਦੀ लिख ਰਿਹਾ, ऑक्सीडेशन स्टेट ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ लिखो। आर्गन 18 तो बाद 3d5 4s2 4p0। कोई पेयरिंग नहीं करवानी, कोई एक्साइटेड नहीं, कुछ नहीं कराना। फटाफट ट्राई करो किन्ने अनपेयर्ड आ रहे ने, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। चेक करो कितना आ रहा है ਇਹਦਾ मैग्नेटिक मूवमेंट, किन्ने अनपेयर्ड है ਇਹਦੇ अंदर। फटाफट ट्राई करो। फाइव अनपेयर्ड, शाबाश गुंताज। चेक करो क्या बाकी भी 5 अनपेयर्ड आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना है ना, x-4 इज -2, x आ गया +2, तो यदा मतलब मैंगनीज के उत्ते +2 चार्ज है। तो ये बनेगा आर्गन 18 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 4s0 4p0। एस सारा खाली पे, पी सारा खाली पे। ठीक है, अच्छा हुण इहदे अंदर कोई पेयरिंग नहीं करवानी, तो एज इट इज रहणगे। 4 बॉन्ड बनाणियां ने, तो 4 बॉन्ड इधर बन जाणगियां 4 खाली ऑर्बिटल दे नाल, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगी। आ पए ने 5 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन। एग्जामिनर पूछेगा इहदा मैग्नेटिक मूवमेंट दसो, कितना आंदा जी? √n × n+2। शाबाश गुरताज। √, कितना आ गया? 5 × 5 + 2, कितना आ गया है? √5 + 2 7, 5 × 35। ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 5.91 ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੇਟ੍ਰੋਨ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है,
ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ। ठीक है, आ देखो नेक्स्ट चीज। हुण आपां ने की करना है, आपां ना देखो हुण किसी को अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन किन्ने होणगे, या तो 0 होगा, ਉਹਦੀ मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, या 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 ਤਾਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਅਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਹੀ ਅਨਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਨਪੇਅਰਡ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है ना, तो आप करते हैं, आप एक छोटा जिहा टेबल बना लेने हुण इह तुसीं सॉल्व करो फटाफट बैठ के। देखो इहदे अंदर आप की करते हैं, आप दो कॉलम्स बना के लैफ्ट साइड ते लिखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। राइट साइड ते लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होंदा फॉर्मूला अंडर द रूट n इंटू n+2। जिवें हुणी देखिया अपने कोल जदों 5 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन आ रहे सीगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट आई √5 × 5+2, जिन्हों सॉल्व करके आया 5.91, यह 5.9 याद कर लो। अच्छा अगर 0 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होएगा फिर तो 0 ही आएगी मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर 1 अनपेयर्ड होएगा फिर आएगी √3, √3 होंदा 1.7, है ना। तुसी 2 3 और 4 अनपेयर्ड दी मैग्नेटिक मूवमेंट लभो फटाफट और उन्होंने इत्थे फिल करो, थोड़ा जिहा जल्दी करो, जल्दी नोट करो इन्ना। देखो अगर 2 दी हुंदी है तो कितनी आएगी, 3 ते कितनी आएगी, 4 ते कितनी आएगी। कितनी आ रही है देखो, अगर ठीक है 3 वाली दी आ रही है 3.87, 2 वाली दी देखो कितनी आ रही है, यदि आ रही है 2.82। भावें तुसीं इन्ना भी ना याद करो, 0 1.8 2.8 3.8 इदां ही चल रहा ना। यदि आ रही है 4.89 यानी कि 4.9, तो देखो है ना। तो जिवें ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अंदर जिदा ही थोड़े अनपेयर्ड आ गए, 3 अनपेयर्ड आ गए तो 3.8 आंसर है मैग्नेटिक मोमेंट, 4 अनपेयर्ड आ गए तो 4.8 वाला आंसर है, 5 अनपेयर्ड आ गए तो 5.8 या 5.9, है ना। 1 अनपेयर्ड आ गया तो 1.7। तो उत्थे सॉल्व करन दे नालों ये चीज़ों को याद कर लोगे तो बैटर रहेगा। और एक छोटा जिहा कारण है, कई बार ना क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है, थोनू कहेगा जी एक कंपाउंड दे देगा, कहेगा उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हैगी है 5.9, ਉਹਦੇ ਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 5.9 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਡਰ ਦ ਰੂਟ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਚੱਲੋਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤਾਂ 5.9 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ 5 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਕਰਨ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਲ ਚ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन लिखो फटाफट। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnF4 2 minus is 5.9 bm, ठीक है। प्रिडिक्ट इट्स
हाइब्रिडाइजेशन पहला 2 मिनट एक बार देख लो मैं दसदा ठीक है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnF4 माइनस इज 5.9 bm प्रिडिक्ट इज हाइब्रिडाइजेशन पहली गल Mn ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਿਗੈਂਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਿਗੈਂਡਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ sp3 ਜਾਂ dsp2 ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ sp3 ਜਾਂ dsp2 ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫਲੋਰੀਨ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ 5.9 bm ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ mn ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ mn ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ x -4 equal to -2 x ਆ ਗਿਆ +2 ਤਾਂ mn +2 ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਗਨ 18 ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3d5 ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4s0 ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 4p0 ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3d5 ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਬਣਾ ਲੇ 1 2 3 4 5 4s ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 4p ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫਲੋਰਾਈਡ ਇਹਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ds ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 5 ਹੀ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 5 ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਬਿਟਲ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾ ਆਰਬਿਟਲ ਆ ਪਿਆ ਦੂਸਰਾ ਆਰਬਿਟਲ ਆ ਪਿਆ ਤੀਸਰਾ ਆਰਬਿਟਲ ਆ ਪਿਆ ਚੌਥਾ ਆਰਬਿਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ sp3 ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 5.9 bm ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ sp3 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੀ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵਰਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ bm ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੇਪ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ठीक है तो कोई कंपाउंड दे तो वो तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लवे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म च आ सकता है पूरा पॉइंट समझ आया ना क्वेश्चन नू नोट करो फटाफट अज वाला लैक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ईवनिंग के अंदर तो जिदा भी कुछ जिन्हें कोई वीडियो या कुछ पार्ट मिसिंग है तुसीं ईवनिंग के अंदर देख सकते हो ठीक है बाकी आपां कल मिलते हैं थैंक यू सो मच।